Good morning, everyone. My name is Hemlata Yadav, and I am your teacher of science. So, we are going to today discuss about the how do organism reproduce chapter. And this is a very simple chapter because you know that it is a very common thing that we see the living organisms around us. So, living organisms around us are the symbol that the organisms are producing themselves. How they are producing themselves? The old organisms produce themselves through the process of reproduction, means against production. So whenever any organism, we see the small uh, butterflies, we see the small birds, new birds. The birds lay egg, and from the egg new birds come. In the same way, we see the new worms, new ants around us. And that are also the reason why the organisms are producing and giving rise to the new organisms. And they are uh, able to do that because of the reproduction. So, in this way, we know that the organisms are having the ability to reproduce. So organisms also reproduce to maintain their living organism species on the earth. It is also a process by which the diversity is present on the earth because of the so many types of living organisms around us. तो organisms हमारे चारों तरफ हैं और वो इसीलिए हमें दिखाई देते हैं because वो reproduction करते हैं. तो आज हम उनके कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं. आपके सामने स्क्रीन शेयर्ड है. Hydra reproduces by dash and dash. So correct option is asexually it is reproducing, and by the budding process it is reproducing. Which of the processes of the organism helps in the growth and the reproduction population? The answer is C, reproduction. Which of these is a disadvantage of the process of vegetative propagation? So offsprings are genetically identical. It is rapid and economical method of the reproduction. It produces seedless fruits. Diseases of the parent plant get transferred to the offsprings. So that is the correct option is D, because the vegetative parts are only producing the new organisms. So diseases will be transmitted by the vegetative propagation. When the organism breaks into number of part and each part separately develop into individual, then the correct option is C. Correct option is A, regeneration. It is the So we were revising this question and answers. When an organism break into number of parts, each part develop into a new individual. Correct option is regeneration. How many chromosomes are present in the ovum of the human being? The correct answer is the 23, because we know that ovum is the haploid gamete. It's the gamete which is a sex cell which is produced by the organisms. Sex specifics, the female produce ovum and the male produce sperms. These are gametes. So they have 23 chromosomes only. The number of chromosomes in the parent and the offspring of a particular species remain constant due to. What is the reason of number of chromosomes remaining constant? So पहला ऑप्शन दे रखा है doubling of chromosome after zygote formation.
Second option, having chromosome during gamete formation, halving of the chromosome. C is the doubling of the chromosome after gamete formation. So B option will be correct, halving of the chromosome. बिकॉज जब हाफ हो जाएंगे क्रोमोसोम्स पेरेंट से, तभी जब वो फ्यूज होंगे, जैसे कि ये मेल है, मेल ऑर्गेनिज्म है, ये फीमेल ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्होंने मेल ने स्पर्म बनाए, तो स्पर्म में इन्होंने 23 क्रोमोसोम कर दिए, और एग में भी इन्होंने कितने बनाए, ओवम बनाया, ओवम में भी 23 क्रोमोसोम कर दिए, और दोनों 23 जब स्पर्म और एग मिक्स हुए तब 23 पेयर क्रोमोसोम के बन गए, जैसे कि ह्यूमन के नॉर्मल बॉडी सेल्स में होते हैं। तो 23 इंटू 2 हो गए, बिकॉज दोनों, एक स्पर्म और एक ओवम के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, तो जब वो फ्यूज होते हैं तो पेयर में आ जाते हैं हमारे क्रोमोसोम दोबारा से। अब फ्लावर में पार्ट्स दैट प्रोड्यूसेस मेल एंड द फीमेल गैमेट्स आर, कौन से पार्ट्स हैं जो कि मेल और फीमेल गैमेट बनाते हैं? तो एंथर है जो हमारा पॉलन ग्रेन बनाता है, और ओवरी है जो हम एग रखती हैं अपने अंदर। सो आंसर सी हो जाएगा, एंथर एंड द ओवरी। इन द लिस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो, दोज दैट डज नॉट प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड, जो लिस्ट दी हुई है उसमें से कौन से एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं? तो डॉग हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो इसमें स्क्रोटम, ओविडक्ट, वास डिफरेंट प्रोस्टेट दिया है, तो आपको पता है ओविडक्ट तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो इसीलिए ओविडक्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग फ्रॉम द एम्ब्रियो अंडर द सुटेबल कंडीशंस इज कॉल्ड, द प्रोसेस सीड का बनना फ्रॉम एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड का बनना सुटेबल कंडीशन में क्या कहलाता है? तो सी, इट इज जर्मिनेशन। एसर्शन रीजन क्वेश्चन में थोड़ा बच्चों को डिस्टर्बेंस होती है, वो समझ नहीं पाते सही से, तो डायरेक्शन को हमें फॉलो करना होता है। अगर हमें हमारा असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो हम एक ऑप्शन चुनते हैं आंसर में। अगर हमारा असर्शन और रीजन ट्रू है बट रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो हम बी चुनते हैं। जब हमको सी चुनना है जब ए ट्रू हो पर रीजन फॉल्स हो, जब हमको डी चुनना होता है आंसर में तब जबकि असर्शन फॉल्स है पर रीजन ट्रू है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस मल्टीपल फिजन से, तो मल्टीपल फिजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्ट, ये रीजन दिया है, तो दोनों ट्रू तो है पर वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। प्लांट आर वेजिटेटिव प्रोपगेटेड इवन थ्रू देयर बाय दे बियर बर्ड्स, क्योंकि उनके ऊपर बर्ड्स होती हैं इसलिए प्लांट्स उनसे रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। तो पोटैटोज से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, ट्यूबर बाय एप्पल्स बाय कटिंग, तो इसमें भी बी ऑप्शन हो गया, क्योंकि कटिंग से नहीं, तो पोटैटोज तो बर्ड से ही रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। सर्शन रीजन ट्रू तो है बट उनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। ह्यूमन मेल्स the testes are present inside the scrotum. The scrotum has relatively lower body temperature for the production and the storage of the sperm. तो ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि टेस्टिस बाहर होती हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी से, क्योंकि वहां पर स्पर्म बनने हैं, उनको बॉडी टेम्परेचर से लो बॉडी टेम्परेचर चाहिए। एंड असर्शन सर्जिकल मेथड are more effective method for contraception. Surgical method blocks the gamete transport. So the A option is correct because surgical methods vasectomy, tubectomy, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट को ही ब्लॉक करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन था A, बिकॉज असर्शन रीजन दोनों ट्रू थे और रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी थी। वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं। नेम द फॉलोइंग, द प्रोसेस इन द प्लांट दैट लिंक लाइट एनर्जी विद द केमिकल एनर्जी इज द फोटोसिंथेसिस, कौन सी प्रोसेस है जो लाइट को केमिकल एनर्जी में बदलती है? फोटोसिंथेसिस हो गई। ऑर्गेनिजम्स दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड, उनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज, जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है, उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। सेल दैट सराउंड द स्टोमेटल पोर्स, कौन से सेल्स हैं जो स्टोमेटल पोर्स के को सराउंड करते हैं, उन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड cannot prepare their own food, उनको heterotrophs कहते हैं। The enzyme that secreted from the gastric gland in the stomach that act on protein is the pepsin. Name the correct substrate for the following enzyme. Trypsin प्रोटीन पे एक्ट करती है, amylase स्टार्च पे एक्ट करती है, pepsin प्रोटीन्स पे और lipase फैट्स पे। 2 mark question. What is reproduction? List its 2 types. The production of new organisms from the existing organism the same species is called reproduction. Asexual and sexual दो तरह की होती हैं।
asexual production of new organism from a single parent without involvement of sex cells, gametes. तो हम सिंगल पेरेंट से जब नए ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं बिना किसी गैमेट्स के यूज के, तो उन्हें एसेक्सुअल प्रोडक्शन कहते हैं. सेक्सुअल प्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द टू पेरेंट्स बाय मेकिंग द गैमेट्स. नेम द मेथड बाय विच स्पायरोगायरा reproduces under favorable condition. In this, the method sexual or asexual. Under favorable conditions, Spirogyra reproduced by fragmentation. This is an asexual mode of reproduction. How does planaria reproduce? So in this method, the sexual or asexual planaria reproduces by the process of regeneration. This type is asexual. तो आपको पता है कि वॉर्म है प्लेनेरिया, फ्लैट वॉर्म है, और उसके अंदर स्पेशल रीजनरेटिव एबिलिटी होती है. तो जब वो रिप्रोड्यूस करता है, उसके दो आई स्पॉट्स होते हैं, उसकी बॉडी बहुत सिंपल है. तो जब उसको रिप्रोड्यूस करना होता है अपने हेड, मिडल और टेल पार्ट को अगर वो 3 पार्ट्स में बांट दे, तो उसके हेड से नया प्लेनेरिया बन जाता है, पूरा टेल और मिडल पार्ट सहित, और उसके मिडल पार्ट से भी हेड बन जाता है और उसका टेल बन जाता है, दोनों पार्ट्स बन जाते हैं. तो एक प्लेनेरिया अपने आप को इसी तरह से रिप्रोड्यूस करता है, कट करके और अपने लॉस्ट पार्ट्स को रीगेन करके. इस प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं. प्लाज्मोडियम कैसे रिप्रोड्यूस करता है? वो मल्टीपल फिजन से रिप्रोड्यूस करता है. मल्टीपल फिजन भी एक तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. डिफाइन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, लिट्स मेथड्स एंड एडवांटेजेस. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में नया प्लांट बनाते हैं हम फ्रॉम द ओल्ड प्लांट्स इन द स्टेम्स एंड द लीफ विदाउट हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो नेचुरल मेथड भी है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, जैसे कि पोटैटो में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आई बर्ड्स या स्टेम से होती है. स्टेम की बर्ड्स होती हैं, आई बर्ड्स बोलते हैं उनको. शुगर केन है, उसमें स्टेम से होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नेचुरली. ब्रायोफाइलम है, उसमें लीफ से होता है. अरबी में रूट से होता है. आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग. एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, द नया प्लांट जो बनता है वह वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से एग्जैक्टली पेरेंट प्लांट की तरह होता है. फ्रूट ट्रीज ग्रोन फ्रॉम द कटिंग और द ग्राफ्टिंग स्टार्ट टू बियर फ्रूट्स मच अर्लियर. जल्दी उसमें फल आ जाते हैं. ये एडवांटेजेस है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेथड के. एंड मेनी प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम जस्ट वन प्लांट. एक प्लांट से हम बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं. वी कैन ऑल्सो गेट सीडलेस प्लांट्स. हम आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन से सीडलेस प्लांट्स भी हमें मिल सकते हैं. एक्सप्लेन द बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम. बाइनरी फिजन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने आप को दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स में अगर बांट लेता है, उसे बाइनरी फिजन कहते हैं. पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू टू न्यू ऑर्गेनिजम्स. एग्जांपल, अमीबा ऐसे रिप्रोड्यूस करता है, पैरामीशियम और लिशमेनिया. मल्टीपल फिजन पेरेंट ऑर्गेनिज्म को स्प्लिट करता है मेनी ऑर्गेनिजम्स एट अ टाइम. एग्जांपल, प्लाज्मोडियम. 5 मार्क क्वेश्चन अगर रिप्रोडक्शन के अंदर आएंगे तो वो कैसे आ सकते हैं? हाउ विल ऑर्गेनिज्म बेनिफिट इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स. ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. इसका आंसर क्या लिखा है? रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स टेक प्लेस इन द प्लांट. स्पोर्स आर कवर्ड बाय हार्ड प्रोटेक्टिव कोट which enables them to survive in the unfavorable conditions such as lack of food, water, extreme temperature. तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया है या फिर वो फंगस हैं, तो उनके अंदर ऐसे लॉन्ग थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स जो कि उनके वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं बॉडी के, तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स को तो हाइफे कहते हैं. हाइफे उन फंगस के लॉन्ग थ्रेड लाइक होते हैं, बट जब उन्हें रिप्रोडक्शन करना होता है तो वो एक वर्टिकली थ्रेड अप ऑफ करके और उसके अंदर एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं स्पोरेंजियम. और उसके अंदर बहुत टाइनी टाइनी स्पोर्स, बहुत उसके अंदर स्पोर्स गोल गोल सर्कुलर वो भरते हैं. माइक्रोस्कोपिक पूरा स्ट्रक्चर होता है, बट क्योंकि थ्रेड लाइक हाइफे तो बहुत ज्यादा अगर ग्रो कर जाए तो वो हमें फंगस को कॉटन जैसे थ्रेड जैसा वो दिखने लगेगा. बट ये स्पोर्स जो है, ये स्पोर्स स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं. तो ये बॉल जैसा जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये स्पोरेंजियम है. और स्पोरेंजियम का मीनिंग आपको पता चल रहा है कि इट इज अ स्ट्रक्चर which is full of spores, which is a place where spores are. Angium means a vessel and the vessel for the spores. तो फंगस राइजोपस इसका एग्जाम्पल दे रखा है. राइजोपस फंगस अपने स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनाती है. तो राइजोपस रिप्रोड्यूस थ्रू द स्पोर्स. ये एडवर्स कंडीशंस में ज्यादातर होता है.
State the basic requirement for the sexual reproduction, write the importance of such reproduction, nature. Basic requirement sexual reproduction की है, formation of male and female gametes, fusion of gametes. Importance क्या है? Combination of DNA from the two different individual lead to increase in the genetic variation in the organisms. So basic requirement तो यही है कि दो इंडिविजुअल होने चाहिए और दो गैमेट्स वो बनाने चाहिए, अपोजिट मेल और फीमेल गैमेट बनने चाहिए. इम्पोर्टेंस क्योंकि ये गैमेट अलग अलग इंडिविजुअल ने बनाए हैं तो उन दोनों के ही जेनेटिक वेरिएशंस नए ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे, तो ये हमें इंक्रीज इन वेरिएशन करने में हेल्प करता है ये रिप्रोडक्शन, इसीलिए यही इसका एडवांटेज है. फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ट्रांसफर ऑफ, ये स्टेप्स हो गए कि पहले मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे, उनका फिर ट्रांसफर होगा. ट्रांसफर यानी फीमेल ट्रैक में अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो वाटर में वो फ्यूज होंगे, अगर इंटरनल है तो फीमेल के अंदर ट्रांसफर होगा गैमेट का. देन फ्यूजन ऑफ गैमेट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, देन जाइगोट बनेगा जो एम्ब्रियो में बदलेगा. लेस डेवलप्ड स्टेट होती है एम्ब्रियो ऑर्गेनिज्म की, और फिर वो धीरे धीरे से इंडिविजुअल बन जाएगा. एडवांटेज क्या है? सबसे मेन एडवांटेज तो यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीज होती है और प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन की वजह से ही एवोल्यूशन होती है तो वो नया रोल प्ले करते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में. रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग. गिव 3 रीजन द सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट. तो क्यों इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन लिविंग बीइंग्स के लिए? 3 रीजन क्या है? कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, वन रीजन, it promote diversity of the characters, second reason, enhances the survival in the chances, तो सर्वाइवल भी बढ़ जाता है क्योंकि वेरिएशन ज्यादा होते हैं, तो नेचर में सिलेक्ट होने का ज्यादा चांस हमारे पास होगा जब ज्यादा हमारे पास वेरिएशन होंगे. अब 5 मार्क क्वेश्चन में उन्होंने बोला है ड्रॉ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इस तरह से हम बना सकते हैं टेस्टिस, and then you can take a screenshot also. This is a simplified figure of the male reproductive system. testes बनाई है, फिर diadems उसके ऊपर बनाया है, then vas difference बनाया है, the tube which is taking the sperm from the testes का काम यही है कि testes से sperm पास करे. then prostrate gland दिखा रखा है, seminal vesicle दिखा रखे हैं, ये prostrate gland है. then this is ejaculatory duct which is coming in the penile urethra, and then it can be released from the urethra to the female body through the penis. So this is the human male reproductive system. Then five number question, define pollination, explain the different types of pollination, list 2 agents of the pollination. Pollination, transfer of the pollen from the anther to the stigma of the flower. Types of the pollination, self-pollination, transfer of the pollen grain from stigma of the same flower. तो यहाँ फ्लावर देख रहे हो, डायग्राम आपको दिख रहा है आराम से कि किस तरह से इसके अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर फ्लावर जो है उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है. स्टिग्मा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और द एंथर इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर. सो हियर इट इज मार्क्ड के pollen grains are transferred from the anther to the stigma. This process is called the pollination. So anther से pollen grains stigma में आ रहे हैं, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से pollen grains बनते हैं एंथर के अंदर. तो एंथर इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो pollen, it is full of pollen grains. pollen grains राउंड स्ट्रक्चर में होते हैं, माइक्रोस्कोप में देखोगे तो बाहर से बहुत इसका कर्व्ड और ड्राई स्ट्रक्चर होता है क्योंकि इसे प्रोटेक्ट करना होता है. अंदर इसमें 2 मेल गैमेट होते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और ये जब फॉल करता है स्टिग्मा के ऊपर यहाँ आके बहुत सारे pollen grains स्टिक हो जाते हैं. जब यहाँ आके बहुत सारे pollen grains स्टिक हो जाते हैं तो pollen grain का काम होता है कि वो अपने सेल को, pollen grain के सेल को पिघलाएं और एक pollen ट्यूब बनाएं. तो वो स्टाइल के थ्रू, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये, तो ये स्टाइल होता है. दिस इज कॉल्ड स्टाइल. स्टाइल के थ्रू द pollen grains इज प्रोड्यूसिंग द pollen ट्यूब. तो इसके अंदर एक ट्यूब बनी है जिसको pollen ट्यूब बोलते हैं, pollen germination से वो बनी है pollen ट्यूब. एंड pollen ट्यूब इज द एबिलिटी टू ट्रांसफर द मेल गैमेट. जो pollen grain में यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स हमको दिख रहे हैं, 2 मेल गैमेट्स, वो pollen ट्यूब के थ्रू अंदर जाएंगे. तो pollen ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट्स अंदर जाते हैं और यहाँ पर जाकर वो यहाँ पर एक एग ओव्यूल सा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर एग बना रखा होता है. तो ये pollen ट्यूब जाती है और मेल गैमेट्स को यहाँ रिलीज करती है, तो वो फ्यूज हो जाते हैं, जाइगोट बन जाता है.
तो दैट वाज द पॉलिनेशन। ट्रांसफर को पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होते हैं, और जब वो सेम फ्लावर में हो रहे हैं तो इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में आप देख रहे हो देयर आर टू डिफरेंट फ्लावर्स विच आर शोन हियर, एंड स्टेमन से फ्लावर के स्टेमन से पॉलन ग्रेन आ रहे हैं, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर पॉलन ग्रेन गिर रहे हैं तो दैट मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन। इस फ्लावर के स्टेमन से पॉलन ग्रेन इस पे अभी अपने आप तो आ सकते हैं, बट इनको अगर कलरफुल फ्लावर है तो इनको इंसेक्ट्स लेके जाते हैं। तो थ्रू इंसेक्ट एक्ट एज एन एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। इंसेक्ट जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो पॉलिनेशन कर देते हैं, तो उनसे ही पॉलन ग्रेन्स पहुंचते हैं। एंड क्रॉस पॉलिनेशन से जेनेटिक वेरिएशन आता है, ये भी इसका क्या है एडवांटेज है। wind, water, insect or animal act as agents of pollination. A tube of the pollen grain is growing through the pollen grain and traveling through the style to reach the finally to the stigma, to the ovule. एंड फिर फर्टिलाइजेशन हो रही है। ड्रॉ द न्यू लेबल डायग्राम द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें हम देख रहे हैं कि वेजाइना है आउटर मोस्ट पार्ट, एंड देन सर्विक्स है, एंड देयर इज अ यूट्रस विच इज अ पियर शेप ऑर्गन, देन ओवरीज हैं एंड फेलोपियन ट्यूब्स हैं ओवरीज के ऊपर। तो फेलोपियन ट्यूब्स एग को ले जाने का काम करती हैं, ओवरीज एग को बनाने का काम करती हैं। एग बना ओवरी में, फेलोपियन ट्यूब उसे लेकर गई यूट्रस तक, उसने यूट्रस में जाकर उसे अटैच किया। अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म आता है और एग से फ्यूज होता है, यहाँ एग बनाया है और फेलोपियन ट्यूब इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। जब हम फ्लावर में देख रहे थे तो ऊपर हमने देखा कि ओवरी के अंदर जाकर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो फ्लावर में तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ओव्यूल हो गया, ओवरी हो गई। पर जब फीमेल में हम देखते हैं तो फीमेल में, ह्यूमन फीमेल में फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइज्ड एग फिर हमारा यूट्रस में आके अटैच हो जाता है। This we have discussed most of the parts of this chapter and I hope it is clear to you. So you will be learning from your video and also from your NCERT. So I will end the session here.